Good morning, students. So today we start with solving our NCERT exercise of chapter 1, that is some basic concepts of chemistry. Till now we have discussed some example as well as some back exercise question. Now today I am going to solve those, or we are going to discuss those questions we are left with from NCERT exercise chapter number 1. So let's start with question number 2. Question number 1 we have already done. So question number 2 is very easy question. Okay, so just read it carefully, then try to solve it. Calculate the mass percent of different elements of present in sodium sulfate. Now in this question they have said you have to find out the different mass percent of various elements present in sodium sulfate. So in sodium sulfate, as you can see here, the formula is given Na2SO4, but sometimes they just say sodium sulfate, and you should know the formula of this sodium sulfate. इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन है, बट सम टाइम एग्जामिनर may not give you this one. आपको पता होना चाहिए what is the formula of sodium sulfate. So as you can see here, in sodium sulfate, sodium is there, sulfur is there, and 4 oxygen atoms are there. So we have 3 different types of elements: sodium, sulfur and oxygen. अब हम तीनों के लिए one by one we will find out the mass percentage. So हमने अभी इसमें फॉर्मूला पढ़ा था दैट मास परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound divided by molar mass of the compound into 100. जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की हम मास परसेंटेज निकालेंगे उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो हियर first of all we will calculate the molar mass of sodium sulfate. So this is the molecular formula for sodium sulfate. When we find out the molar mass, it is comes out to be, for one sodium is 23, two sodiums 2 into 23, then plus for sulfur it is 32.066. ज़रूरी नहीं है आप पूरे डेसिमल तक ही लेना है, आप इसको 32 भी ले सकते हो. ओके, plus 4 into, for 1 oxygen it is 16 and for 4 it is 64. So it is total comes out to be 142.066 grams. This is the molar mass of sodium sulfate. Now first we are here calculating the mass percentage of the सोडियम. तो हमें सबसे पहले सोडियम की मास परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना है. तो मास ऑफ सोडियम यहाँ पे, अब वैसे तो सोडियम का मास जो है इट इज़ 23, बट यहाँ पे 2 सोडियम है, सो वी आर टेकिंग हियर एज 46 grams डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 142.066 grams into 100. सो व्हेन वी कैलकुलेट इट वी विल गेट 32.4%. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ सल्फर. अब नेक्स्ट हमने सल्फर के लिए स्टार्ट कर दिया. So for sulfur only one sulfur is there, so we will take here 32.066 divided by total mass and it is comes out to be 22.6%. Next last we are left with oxygen. So mass for finding out the mass percentage of oxygen, mass of the oxygen in this is 64 divided by total. So for oxygen it is comes out to be 45.05%. So हमने तीनों एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है मास परसेंट in case of sodium sulfate. I hope you understand it very well. Please practice these numerical problem. There seems to be very easy, लेकिन जब आप इनको solve करने बैठते हैं, when you try to solve it, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ईजी लगेगा. लेकिन कई बार क्या होता है जी, बस ये फाइंड आउट करना है, ओके वी विल, लेकिन जब हम एग्ज़ाम पे सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ नहीं आता. ठीक है, सो प्रैक्टिस देम. नेक्स्ट स्टार्ट विथ
1.3 numerical of your NCERT book. Now, this is question number 1.3, that is determine the empirical formula of an oxide of iron. कोई आयरन का ऑक्साइड है, अब आपको पता है व्हाट इज एन ऑक्साइड. whenever any element burns in oxygen it forms oxide, that is it is known as oxide of iron. तो आयरन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई ऑक्साइड बनाया, हमें फॉर्मूला नहीं पता, जिसका कि परसेंटेज है विच है 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑफ डाईऑक्सीजन बाय मास. तो ऑक्सीजन, इसमें आपको ऑक्सीजन और आयरन का जो है बच्चे आपको परसेंटेज गिवन है, तो वो हमने अब फाइंड आउट करना है इसका इम्पेरिकल फार्मूला. तो इम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ बैक एक्सरसाइज के ही. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ वेरी इजी. इन दैट टाइम आई हैव जस्ट टेल यू कि आपको इन क्वेश्चंस में टेबल बनाना है. सो वी कैन मेक हियर ऑल्सो. आप इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, एक टेबल बनाइए, ठीक है, बट ऐसे मत बनाना प्रॉपर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, जो जो एलिमेंट आपके यहाँ पे गिवन है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 ही एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन एंड आयरन. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट में वी विल नोट इट डाउन द परसेंटेज. तो जितनी भी दोनों की परसेंटेज है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे. ऑक्सीजन 30.1 एंड फॉर आयरन इट इज 69.9. देन मास इन ग्राम्स. नो व्हाट विल वी कंसीडर हम सोचेंगे कि ये जो हमारे पास है टोटल ये 100 ग्राम्स है. तो 69.9% का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सैंपल में आयरन जो है या पर्टिकुलर ऑक्साइड में आयरन जो है वो 69.9 ग्राम्स है इफ़ टोटल मास इज़ 100 ग्राम. तो यहाँ पे जस्ट वी विल राइट डाउन 69.9 ग्राम्स हेयर. ये वाली जो आपकी टर्म है एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी परसेंटेज वाली. ये वाली जो है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी बट इन ग्राम्स, ठीक है. बट दिस इज़ फॉर आयरन एंड दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन. ओके. उसके नेक्स्ट आपका कॉलम होगा फॉर नंबर ऑफ मोल्स. अब हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. सो हाउ विल वी फाइंड आउट दैट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड इज परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास. सो परसेंटेज कितनी आयरन की दी हुई है 69.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन. तो जितनी परसेंटेज गिवन है हमने वो लिया और आयरन का एटॉमिक मास लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया. इट इज कम्स आउट टू बी 1.25. सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड. सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ these are the number of moles. Now we will find the number of moles again here for oxygen. These are the number of moles for iron. So percentage of oxygen is 30.1 divided by atomic mass of oxygen 16. So it is comes out to be 1.88. Now what will we do. Now simplest molar ratio of iron to oxygen. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इनकी रेशो फाइंड आउट करना. सिंपल मोलर रेशो सिंपलेस्ट. अब देखो यहाँ पे इट इज़ 1.25 एंड रेशो 1.88. 1.25 रेशो 1.88. सो व्हाट विल वी डू. हम इसको मिनिमम नंबर से, ये है इन दोनों में से मिनिमम, दिस वन 1.25 इन मिनिमम, इन दोनों को ही डिवाइड कर देंगे. सो हेयर वी गेट 1 एंड हेयर वी गेट 1.5. अब हमारे पास ये आ गया. इट इज़ 1:1.5. वी विल नाउ इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2. सो वी आर गेटिंग हियर 2:3. So the empirical formula is for this. Now 2 for iron, 2 आपका ऑक्सीजन के लिए आयरन के लिए ना. दिस इज 1.25 आयरन के लिए है. सो दिस इज फॉर आयरन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन. सो इट इज Fe2 and O3. So this is the empirical formula for the given oxide of the iron. Very easy question. कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. अब इस क्वेश्चन को हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपको वो मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा हो तो.
In next question you will find the same. Next is question number 4. Calculate the total amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. Now हमें पूछा है कि आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अमाउंट होगा when it is burnt in air, when 1 mole of carbon is burnt in air. तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है. So the balance equation for this reaction is when carbon burns in air, that is C plus O2 gives you CO2. Now यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशेंट्स क्या है. मैंने आपको स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशेंट्स के बारे में बताया था कि जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के लिए हम कॉफिशेंट्स यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं, उनको हम स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स कहते हैं. तो यहाँ पे कार्बन के लिए भी 1 है, ऑक्सीजन के लिए भी 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 1 है. क्यों बच्चे 1 है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. कार्बन 1 इन रिएक्टेंट साइड, कार्बन 1 इन प्रोडक्ट साइड. 2 oxygens in reactant side, 2 oxygen in product side. So there is no need to balance this reaction. It is already balanced. Now in first part they have asked 1 mole of carbon is burnt in air. हमने एयर में कार्बन का 1 मोल बर्न किया है. तो अगर 1 mole of carbon we are burning in 1 mole of oxygen, how many moles of carbon dioxide we are getting? 1. अगर हम कार्बन का 1 मोल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का भी 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? अगेन 1. सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गेटिंग हियर. बट यहाँ पे उन्होंने कोई मोल नहीं पूछा है. दे हैव आस्क्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो अमाउंट हम ग्राम्स में हाउ विल वी फाइंड आउट? अगर 1 मोल कार्बन है तो कितने के बराबर है वो? यहाँ पे कितने इक्वल के हैं? 12 ग्राम्स. ये हियर इट इज इक्वल टू 32 ग्राम्स. And for here it is 44 grams because total molar mass of carbon dioxide, that is 32 plus 12 is 44 grams. So 44 gram of CO2 will be the amount of carbon dioxide when 1 mole of carbon is burnt in air. Now move to next part. 1 mole of carbon is burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. अब हमारे पास यहाँ तो 1 मोल ही है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है हमें 16 ग्राम्स, 16 ग्राम, और पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम जरा अपने स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स की तरफ चलें तो अगर कार्बन का 1 मोल है तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल के साथ. तो 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं? 32 फॉर ऑक्सीजन. बट यहाँ कितने हैं? 60 ग्राम्स, 16 ग्राम्स. तो आपको सीधा पता चल गया ये हाफ है. तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हाफ मोल हो जाएगा. बट येट आपको अगर कंपैरिजन करने नहीं आता है, वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास, दैट इज 16. ठीक है, गिवन मास आपको यही है ना 16, और दैट इज मोलर मास. तो आपका सॉरी यहाँ पे आपको आ जाएगा 32, लेट इट बी. तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 16 डिवाइड बाय 32 वी विल गेट हियर 0.5. ठीक है. सो कैसे आया बच्चे 0.5? अगेन आई विल एक्सप्लेन. दिस इज गिवन मास 16 and it is 32 molar mass of the element. So 16 1/2 आ गया आपका. So 1/2 is equal to 0.5. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 0.5 मोल आया है. नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट बन गया. तो अगर आपके पास अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना हमारे पास CO2 बनेगा. तो पहले क्या था? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था. नाउ वी हैव हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे भी हाफ मोल ऑफ CO2 बनेगा. दैट इज इन ग्राम इज 22 ग्राम्स. थर्ड पार्ट इज 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे 2 मोल हो गए, यहाँ पे 16 ग्राम्स ही है. और तो 16 ग्राम्स के लिए हमें पता है इट इज 0.5 मोल्स. तो फिर से लिमिटिंग रिएजेंट आपका यही है.
तो यहाँ पे फिर से you will get 22 grams of carbon dioxide gas. Okay, these are very simple questions. Now next move to further fifth problem. Calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of this molar solution, aqua solution. Now, जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, they have said this molar aqua solution. तो molar means molarity is given. Molar means this much number of moles dissolved in 1 liter of the solution. So 0.373 molar aqueous solution of sodium acetate means 1000 ml of solution containing 375 moles of sodium acetate. So the number of moles for sodium acetate in 500 ml unitary method लगाएंगे भी, it is very easy. So 0.375 divided by 1000 into 500, so it is comes out to be 0.875 moles. तो ये हमारे पास आपके number of moles आ गए. Now molar mass of acid sodium acetate, हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ सोडियम एसिटेट. तो मास कैसे निकलेगा, हमें पता है रिलेशन, दैट इज N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मोलर मास को यहाँ मैं जस्ट ऐसे डिनोट कर रही हूँ सो दैट यू कैन इजली फाइंड आउट, you can compare between this and this given. तो हमें ये निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, दैट इज 0.1875. दिस वन वी नो दैट, यहाँ से we will calculate it, otherwise it is given. yes, molar mass of sodium acetate is given. so यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स हमने ये निकाल लिए. अब यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द मास ऑफ द सोडियम एसिटेट, दैट इज 15.38 ग्राम्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. मूव नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ प्रॉब्लम. नाउ calculate the concentration of nitric acid. So what is the formula for nitric acid? HNO3 in moles per liter. अब यहाँ पे बच्चे फिर से वन थिंग इज क्लियर, गिवन मोल्स पर लीटर मीन्स यहाँ पे मोलैरिटी की बात हो रही है. इन अ सैंपल विच हैव ए डेंसिटी भी दी हुई है, एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%. नाउ दिस न्यूमेरिकल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड. एक तो जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक और मेरे पास है, दैट इज़ अगर आपको डेंसिटी दी हुई है, मास परसेंटेज भी दिया हुआ है, और आपको निकालना हो कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, दैट इज़ M इज इक्वल टू 10x D divided by MO. Now what is this? This is molarity. और ये आपका आ जाएगा मोलर मास. ठीक है, ये आपकी आ जाएगी डेंसिटी, और ये जो x है दिस इज योर मास परसेंटेज, दैट इज गिवन हियर 69%. तो अगर हम इन सब वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, वी विल फाइंड द आंसर. सो ये आप खुद करके देखना. आई हैव जस्ट नोटेड डाउन द फॉर्मूला हेयर, आप इसको खुद सॉल्व करके देखना. I will solve with the help of this method here. So mass percentage of nitric acid in the sample is given 69%. If we consider it is 100 gram of nitric acid, then we said 69 gram of nitric acid by mass. तो हम यहाँ पे ये पता चल गया 69, हमने इसको परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर लिया. Now we will find the molar mass of nitric acid. तो मोलर मास के लिए हमेशा ही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. 1 hydrogen, 1 nitrogen, 3 oxygen. So it is when calculated it is 63 grams per mole. Now number of moles. How will we find out number of moles? Given mass divided by. तो यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, दैट इज 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक. देखिए ये भी 69 है, ये भी 69 है. जो हमने
एक 63 है और जो गिवन है इट इज 69। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय जो हमने फाइंड आउट जो एक्चुअल मोलर मास है वो, तो गिवन 69 है, जो हमने मोलर मास निकाला दैट इज 63, इट इज कम्स आउट टू बी 1.095 मोल्स। नाउ वॉल्यूम की टर्न आती है। नाउ वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सो एज वी नो डेंसिटी इज गिवन, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 100 ग्राम्स, so 100 gram divided by density is 1.41 gram per liter. So when we calculate it, it is in milliliter and this is in liters. Now concentration of nitric acid, so concentration कैसे निकलेगी, number of moles divided by volume। तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन हमारा कैसे निकला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स वी हैव रिटन हियर, दिस इज आवर वॉल्यूम एंड here we go with the given concentration. You have to practice for mathematical these calculations. These calculations must be you are not these calculations must be fast. You are not provided with any calculator or any electronic gadget during the exam, so practice a lot for these calculations. Next is start with seventh numerical. How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? अब हमारे पास कहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है हमारे पास, तो उसमें कितना कॉपर हमें मिलेगा। 100 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट का पूरा मतलब पाउडर है, ठीक है, या क्रिस्टल्स हैं, तो उसमें कॉपर कितना होगा। सो एज यू कैन सी 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट का है तो उसमें 1 मोल ही कॉपर का होगा। नॉट मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज, वी विल फाइंड हियर, कॉपर के लिए 63.5, सल्फर के लिए 32, फॉर 4 ऑक्सीजन इट इज 64, व्हेन वी ऐड इट इज कम्स आउट टू बी 159.5 grams. So this much of copper sulfate contains this much of copper. इतने कॉपर सल्फेट में हमारे पास ये वाला कॉपर प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, अप्लाई द यूनिटरी मेथड। सो दिस डिवाइडेड बाय this into 100 grams of copper, so it is comes out to be 39.81 gram. So I hope there is no need to explain this question in detail, it is very easy one. Next we'll start with 8th question. In 8th question, determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen is this. अब देखिए बेटा, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने 1.3 न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया है। सो टिल हेयर इट इज़ सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एम्पिरिकल फार्मूला। तो जब मैंने वहाँ पे भी आपको डिस्कस किया था व्हेन आई सॉल्व दैट 1.3 प्रॉब्लम, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकलता है, पहले स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द मोलिकुलर फार्मूला। सो फॉर इट फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास का होगा इसका मोलिकुलर मास जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है। सो इट इज कम्स आउट टू बी 159.69 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका मोलर मास क्या है, 159.69 and this is a molar mass, sorry, empirical formula mass. Both are about these both are approximately equal. So these both are approximately equal. So 0.999 we will take it as 1 here. So molecular formula of a compound is obtained by multiplying the empirical formula with n. So अब जो हमारे पास n की वैल्यू आई है दैट इज 1, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का क्या मेथड होता है बच्चे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द n विद एम्पिरिकल फार्मूला। हम इस n को इस एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये तो 1 ही है, सो देयर इज़ नो चेंज इन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा ये था और मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा बिकॉज द नंबर ऑफ स्मॉल n
is value of small n is 1. सो यहाँ तक तो हमारा पिछला ही न्यूमेरिकल चल रहा था. सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. आगे का हम पहले भी ये न्यूमेरिकल कर चुके हैं. 1.35 एंड 1.36 न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. 10th question. 9th we have done already. In 3 moles of ethane, calculate the following. This is very easy one question, but I just taken it to discuss with you. The 3 moles of ethane. This is our ethane. आपने नेमिंग की है कार्बन कंपाउंड्स की in 10th class. Why it is ethane? C2H6. So number of carbons are 2, means 8. Now एन फॉर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सो इट इज इथेन. नाउ इथेन के केस में कहा है अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथेन हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स. देन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. सो एज यू कैन सी हियर, फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम देयर आर, सॉरी, फॉर 1 मोल ऑफ इथेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. 2 का एक 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन्स हैं? ऑब्वियसली 2 हैं. C2 कार्बन्स हैं. तो अगर ये 3 हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ इथेन हो जाएंगे, तो कार्बन क्या हो जाएंगे? सिंपल, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई with 3 to the number of carbon atoms and this comes out to be 6. Second part, number of moles of hydrogen atom. तो अगर हम इथेन के मोल्स को ट्रिपल कर देते हैं, 3 मोल्स कर देते हैं, तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? एज यू कैन सी हेयर, फॉर 1 मोल ऑफ इथेन हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 6. फॉर 3 इट इज 3 into 6, that is 18. Very easy. In third part, they have asked number of molecules of ethane. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम की तरफ ध्यान देना है, तो एवोगैड्रोज नंबर. ठीक है. सो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.023 into 10⁻23 molecules. So 3 moles में कितने होंगे? We will just multiply this number with 3 and it is comes out to be 18.069 into 10⁻23 molecules of ethane. Sorry, molecules of ethane. ठीक है? Right. I hope you understand it. Move to next question, that is last question for today. What is the concentration of sugar in mole per liter? अब मोल पर लीटर फिर से आ गया, मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी. इफ इट्स 20 grams आर डिजॉल्व्ड इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर. तो इसका क्या मतलब है कि 20 ग्राम हमने शुगर लिया है और उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 2 लीटर. मैं ये नहीं कह रही कि उसमें 2 लीटर वाटर ऐड करना है. 20 ग्राम सोल्यूशन है, सॉरी शुगर है, इट इज़ कन्फर्म्ड. लेकिन वाटर 2 लीटर है, इट इज़, दे हैव नॉट सेट, दे सेट जो हमने टोटल हमारा सोल्यूशन है इट इज़ 2 लीटर. सो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ तो हमें गिवन नहीं है, यहाँ तो नहीं ना दिए उन्होंने, बट वी कैन फाइंड इट नंबर ऑफ मोल्स. हाउ वी विल फाइंड? मास, दैट इज गिवन मास, क्वेश्चन में जो मास दिया है, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो गिवन मास तो आपको यहाँ पे 20 ग्राम्स है, और मोलर ग्राम्स जो है शुगर का वी विल फाइंड फ्रॉम हेयर. कैसे? एक कार्बन के लिए 12 है, सो 12 into 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 है, सो 1 into 22 हाइड्रोजन्स. ऑक्सीजन के लिए 16 है, सो 16 into 11 ऑक्सीजन्स आर देयर into 11. Total this comes out to be 342. So when we divide, or we will just plug in the values here, that is 20 divided by 342, it is comes out to be this one, 0.0585 mole. So these are the number of moles and divided by 2 liter, because solution का जो हमें वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, it is
2 liter. So when we divide it, we will get this mole per liter, that is molar concentration of solution, or we can say that molarity of the sugar solution is 0.0295 per mole per liter. So this is all about your NCERT problems. I have discussed almost all the problems, but anyhow, if you find any difficulty, you can text me or call me. From next lecture we will start our second chapter. So happy learning. Just revise these all the numericals. This is very simple chapter. I hope you understand it very well also. So in next lecture we will discuss regarding our second chapter. Till then, happy learning. Thank you, students.